Bismillahirrahmanirrahim. I start with the name of Allah, the most beneficent and merciful. This is the types of graph. As you have seen, the same thing I have shown in the previous lecture that was related to graphs, introduction and the construction, how to construct a graph, what are the main points. So now this is a continuation of the same topic, and this is the graphical representation refers to the use of the charts and graphs to visually display, analyze, clarify, and interpret numerical data. And there are different types of graphs: line graph or diagram, histogram, bar diagram or pie chart, frequency polygon, ogives, and frequency cumulative frequency graphs. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये वाला जो टॉपिक स्टार्ट करी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ये पहले भी हम कर चुके हैं और इसका ये कॉन्टीन्यूटी है, यानी इसका तसलसल जो है उस टॉपिक से मिलता हुआ है जो ग्राफ्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया था, जिसमें ग्राफ के बारे में किस तरह से बनाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंट या अहम नुकात को हमें जहन में रखना चाहिए। तो उसमें ये स्लाइड थी ऑलरेडी, अब ये सिर्फ उसकी कॉन्टीन्यूटी है और उसमें अब हम कितनी किस्में ग्राफ्स की वो हम बताएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि कुछ ग्राफ जो हैं वो मेन है, मेन जो जो और उनकी सब ब्रांचेज हैं, जैसे लाइन डायग्राम और ग्राफ, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और बार डायग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओगिव एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। मैं आपको उसके एग्जांपल्स के साथ बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन, और उसको आप याद रखिएगा। Let's start our topic, types of graph. I hope I will explain you each and everything in an easy way so that you understand. This is the first type, diagram or line graph. When the time series exhibit a wide range of fluctuations, we may think of logarithm or ratio chart where log y and not y is plotted against t. We use multiple line charts for representing two or more related time series data expressed in the same unit, and multiple axis chart in somewhat similar situation if the variables are expressed in different units. So in this type there is a line graph, and this line graph is mostly used in time series where time is there, their years, months, days, weeks are given, so we use line graph. For example, the profits in thousands of dollars of an industrial house for 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, these are the years, are the profits are 5, 8 in the figures respectively. Represent these data using a suitable diagrams, or this is we will use line diagram or line graph. ग्राफ के अंदर, डायग्राम्स के अंदर, और इसको लाइन डायग्राम से बताया जाता है, शो किया जाता है चार्ट में, यानी इसके ऊपर जो हम ग्राफ बनाते हैं वो लाइन की फॉर्म में होता है, यानी और इसके लिए बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब टाइम सीरीज़ आए, जहाँ पे साल आए, महीने आए, डेज आए, दिन आए और हफ्ते आए, यानी टाइम का जहाँ पे जिक्र हो, वहाँ पे घंटों का, सेकंड्स का जिक्र हो, तो वहाँ पे हम ये लाइन ग्राफ मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में बताया गया, प्रॉफिट है दिया हुआ थाउजेंड्स में और डॉलर्स में दिया हुआ इंडस्ट्रियल हाउस, उसमें आपको साल दिए हुए 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, और उसके प्रॉफिट जो उन्होंने बताया थाउजेंड में, उन्होंने थाउजेंड का लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट फिगर लिखा है 5, 8, इसका मतलब 5000, 8000, 9000, 6000, 12000, 15000 एंड 24000, उनके ज़ीरोज़ नहीं इन्होंने मेंशन किए, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लाइन ग्राफ में। Here you can see the continuation of the previous slide, that is line graph.
and it is mentioned for the year 2002 the profit in thousand is $5,000. It can be written as a point 2025, and we are writing the first value is on x-axis is 2002. Years will be shown in the on x-axis, it will be represented on x-axis, and the profit will be represented on y-axis. So 2002 and 5, one value of x, one value of y. Similarly, one value of x and one value of y is 2003 and 8, 2004 and 9, 2005 and 6, 2006 and 12, 2007 and 15, and 2008 and 24. So now you can see the graph is there, and it is easy for you to understand. इस जगह पर आप ये देखेंगे, ये पिछली स्लाइड से रिलेटेड है और इसमें ईयर्स और प्रॉफिट को शो किया गया है। और यहाँ पर क्योंकि जो ईयर्स हैं, जो टाइम है, वो एक्स एक्सिस पे लिया है और प्रॉफिट जो है वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट और वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। और इसके साथ ही एक वैल्यू ऑफ एक एक्स की वैल्यू, एक वाई की वैल्यू, तो पेयर बन गया 2002 एंड 5 यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू। इसी तरह 2003 एंड 8, इसी तरह 2004 एंड 9, 2005 एंड 6, 2006 एंड 12, 2007 एंड 15 एंड 2008 एंड 24। सो इस तरह करके एक प्लॉट किया उन्होंने ग्राफ, और अब आपको मेरा ख्याल है इससे समझ आ जाएगा। Now you can see the second type of graph is histogram. A two-dimensional graphical representation of a continuous frequency distribution is called a histogram. In histogram, the bars are placed continuously side by side with no gap between adjacent bars. That is, in histogram, rectangles are erected on the class intervals of the distribution. The area of the rectangle are proportional to the frequencies. Now draw a histogram. This is the example for the following table, which represents the marks obtained by 100 students in an examination. इस जगह पर आप दूसरी किस्म जो ग्राफ की है उसमें हिस्टोग्राम है, और उसमें आपको दो डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। टू डायमेंशनल मीन टू डायमेंशन इसकी शो की जाती हैं, और इसमें कॉन्टीन्यूटी होती है, यानी लगातार एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टीन्यूटी होती है। और इसमें बार्स प्लेस की जाती हैं जैसे कि बार ग्राफ में होती हैं, लेकिन हर बार दूसरी बार के साथ अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, मिला देते हैं, उसमें कोई गैप नहीं रहता, उसमें कोई फासला नहीं रहता, और वो एडजेसेंट सीधी बार्स की फॉर्म में होती हैं। इसको आप इस एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि एरिया यहाँ पे मेंशन किया, मार्क्स मेंशन किए हुए यहाँ पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, यानी मार्क्स भी दिए हुए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए। Now here you can see the histogram example from the previous slide. The class interval are all equal with the length of 10 marks. Now there is a scale as I told you, the scale will be same constant. So 10, there is a difference of 10 blocks from one point to the other point. Like 10 to 20 there are 10 blocks, then 20 to 30 10 blocks, 30 to 40 10 blocks. So it will continue the same scale on x-axis. Similarly, when you see on y-axis number of students, so the 10 blocks will contain 5 points, like 5, then 10, then 15, then 20, then 25 and 30. And then when you place the values in front of one, see the table, if there is 10 and 5, you will just join this. First make the bars and then join. स्लाइड में आप हिस्टोग्राम देख सकते हैं। हिस्टोग्राम में एक स्केल लिया गया है, स्पेसिफिक स्केल है, जैसे कि मार्क्स लिए हैं एक्स एक्सिस पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो वाई एक्सिस पे लिया है। अब जब स्केल सिलेक्ट किया है तो इन्होंने हर स्मॉल ब्लॉक जो है वो 2 के इक्वल है एक्स एक्सिस पे, जैसे 2, 4, 6, 8,
एंड देन 10। सो 10 ब्लॉक्स का डिफरेंस है, 10 आया, फिर इसी तरह 20 का जंप है, फिर 30 का, फिर 40 का, फिर 50 का, सो ऑन करते करते 90 तक ले गए। अगर आप वाई एक्सिस को देखें तो ए ब्लॉक जो है आपके पास, 2 ब्लॉक्स हैं वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से 5 और फिर 10, फिर 15, 20, 25। तो एक स्पेसिफिक स्केल हमें लेना पड़ता है। जैसे एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स की इक्वल है, वाई एक्सिस पे 5 स्टूडेंट्स। तो ये स्केल सिलेक्शन है, दोनों एक्स पे और वाई पे डिफरेंट स्केल सिलेक्शन हुई हुई है, जो कि मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, जो ग्राफ का है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ग्राफ। Now in the third type is related to bar graph, bar diagram. There are two types of bar diagram, namely horizontal bar diagram and vertical bar diagram. While horizontal bar diagram is used for qualitative data or data varying over space, the vertical bar diagram is associated with quantitative data or time series data. Bars, rectangles of equal width and usually of varying lengths are drawn either horizontally or vertically. We consider multiple or group bar diagrams to compare related series. Components or subdivided bar diagrams are applied for reasoning, for representing data divided into a number of components. Finally, we use divided bar charts or percentage bar diagrams for comparing different components of a variable and also the relating components of the whole. For this situation, we may also use pie chart or pie diagrams or circle diagram. तीसरी जो किस्म है वो बार डायग्राम की है और बार चार्ट्स हैं। उसमें दो किस्म के चार्ट हैं, एक हम हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल अमूदी को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मतवाजी बार डायग्राम को कहते हैं उर्दू में। तो लेकिन फिर भी हम इसको हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार से ही याद करते हैं, मतलब नाम इसको ऐसे ही कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको क्वालिटेटिव डाटा होगा आपके पास तो हॉरिजॉन्टल बार्स होंगी, और अगर क्वांटिटेटिव डाटा नंबर्स के साथ है तो उसमें वर्टिकल बार्स आप ड्रॉ करेंगे, और ये रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगी इसके साथ। इसमें ये होता है कि नंबर्स होते हैं, परसेंटेज यूज़ की जाती है। इसके लिए परसेंटेज जब हम डिवाइड करते हैं तो पाई चार्ट भी उसके लिए यूज़ होता है इस सिचुएशन में। तो बार डायग्राम्स भी एक ईजी वे है जिसको हम शो कर सकते हैं, जिससे डाटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन हिस्टोग्राम जो है वो मुझे ज़्यादा पर्सनली फील करती हूँ कि वो अच्छा है। Now here you can see the example of the bar diagram or bar graph. The total number of the runs scored by a few players in one day match is given. Number of runs are given and the players are given, and 1, 2, first player, second, third, fourth, fifth, sixth, and draw bar graph for the above data. Number of players will be represented on x axis and number of runs, the frequency will be represented on y axis. यहाँ पर इस स्लाइड में जो बार ग्राफ है उसकी एग्जांपल गिवन है, और उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स दिए हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, और नंबर ऑफ रन्स जो है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे, और नंबर ऑफ प्लेयर्स को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करके बार ग्राफ बना लेंगे आप इसी तरह। और स्केल सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए स्केल आप खुद से सिलेक्ट करेंगे कि कितने ब्लॉक्स का डिफरेंस होना चाहिए, 1 से 2 के जंप के दौरान कितने ब्लॉक्स का डिफरेंस होना चाहिए, 2 से 3 थर्ड प्लेयर के दरमियान, 3 से फोर्थ प्लेयर के दरमियान कितने ब्लॉक्स का डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरह वाई एक्सिस पे 10 से 20 के दरमियान कितने ब्लॉक्स का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है।
fourth one is pie chart. Pie chart is just like a circle. In a pie chart, the various observations or components are represented by the sectors of a circle, and the whole circle represents the sum of the value of all components. Clearly, the total angle of 360 at the center of the circle is divided according to the values of components. The central angle of the component is value of the component divided by total value multiplied by 360. Why 360? Because a circle has 360 angle. 360 means a circle has 180. If you see the D, when you join two D's, protractor, so 180 plus 180, it will be 360. Sometimes the value of the component are expressed in percentages. In such cases, the central angle of a component is percentage value of the component divided by 100 multiplied by 360. The example is given as the number of hours spent by a school student on various activities on a working day is given below. Construct a pie chart using the angle measurements. Now the representation will be on the next slide. नंबर 4 पे पाई चार्ट है. पाई चार्ट बिल्कुल इसी तरह जैसे एक सर्कल होता है, दायरा होता है, लेकिन इस दायरे के कंपोनेंट्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, और इसको 360 के लिए एंगल्स में डिवाइड किया जाता है. इसको 360 इसी तरह जैसे प्रोटेक्टर और डी अगर आप ले लें, 2 डीज ले लें और 2 प्रोटेक्टर, जिनको कंबाइन करें तो वो एक सर्कल की तरह बन जाएंगे. तो एक डी के अंदर 180 डिग्री एंगल्स होते हैं, यानी पूरे 180 डिग्री तक आपके एंगल्स मेजर हो जाते हैं, और दूसरी डी में भी 180 डिग्री एंगल्स मेजर हो जाते हैं. जब एक पूरे सर्कल डी आपको कंबाइन करें 180 प्लस 180 360 होता है. इसमें जब हमें कंपोनेंट सेंट्रल एंगल के मालूम करने हो तो उसमें हम वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डालते हैं डिवाइड बाय टोटल वैल्यू और 360 कर देते हैं. इसी तरह जब सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट मालूम करना हो तो फिर हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और उसमें वो नीचे फॉर्मूला शो किया हुआ है, उसको हम किससे वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है. जैसे कि जितने नंबर स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिविटीज़ प्ले करते हैं पूरे दिन में, और वो कितने आवर्स वो सोते हैं, कितने आवर्स स्कूल जाते हैं, कितने आवर्स प्ले करते हैं, कितने आवर्स में वो होमवर्क करते हैं, और अदर्स में वो क्या और काम करते हैं अदर घंटों, दूसरे घंटों में, बाकी दिन में. तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो, ये रिप्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में है. Now this is the representation of the pie chart. This is how they have created the table. The tabulation, in the tabulation form, it is activity, duration of hours, and central angle. For central angle 8 is given, and then divide by the 24 the total hours, multiply by 360 is equals to 180. The similarly 6 divided by 24 multiply by 360 90, and 3 divided by 24 multiply by 360 is equals to 45. Then homework he was spending 3 hours on working on the homework. 3 over 24 multiplied by 360 is 45. Similarly, for others, 4 over 24 divided by 360. टेबल की फॉर्म में, टेबुलेशन फॉर्म में ये टेबल भी मौजूद है. स्लीप में जैसे एक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं, एक साइड पे उन्होंने लिखी हुई, फिर ड्यूरेशन इन आवर्स बताया हुआ है. फिर सेंट्रल एंगल के लिए अगर स्लीप के लिए 8 आवर्स है तो 24, क्योंकि टोटल आवर्स 24 हैं, डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 360. और इसी तरह स्कूल के लिए 6 आवर्स हैं, डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 360. एंड फिर प्ले में भी इसी तरह है, फिर होमवर्क में भी, फिर अदर्स में भी. इस तरह से आप करके 120 से 120 90 45 45 60 इक्वल्स टू 360 के इक्वल आ जाएगा. फिर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो पहले डी अपनी बिल्कुल रखेंगे, और उसके बाद डी की फॉर्म में सर्कल आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सी बेस पॉइंट है. जैसे 120 के लिए 0 से लेके 120 तक एंगल ले गए. फिर दूसरा स्टार्ट आपका होगा वो जो 120 का जो पॉइंट है वहाँ पे से आप 0 से अपना रखेंगे डी प्रोटेक्टर, और फिर 90 डिग्री तक का लेके जाएंगे. तो हर बेस, इसकी बेस चेंज होती जाएगी प्रोटेक्टर के साथ साथ. यानी जैसे 90 हो गया तो 90 की जो बेस होगी, 90 का जो एंगल है वो बेस बन जाएगी 0 की. फिर 0 से लेके 45 प्ले टाइम का होगा. ठीक है, इसी तरह ये हम करते जाएंगे और हमारा बार ग्राफ पाई चार्ट बनता जाएगा.
The fourth type is frequency polygon. Frequency polygon is another method of representing frequency distribution graphically. Obtain the frequency distribution and compute the midpoints of each class interval. Means we will find out the midpoints from the frequency distribution. Represent the midpoints along the x-axis and the frequencies along the y-axis. Plot the points corresponding to the frequency at each midpoint. Join these points by straight lines in order to complete the polygon. Join the point at each and immediately to the lower or higher class marks, as the case may be, at zero frequency on x-axis. This is the example. Draw frequency polygon for the following data without using histogram. The representation will be on frequency polygon में यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो क्लास इंटरवल होते हैं उसमें उनको अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और उनको एक्स एक्सिस पे लेते हैं और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे लेते हैं. इसकी रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट स्लाइड में है, कैसे ग्राफ बनाया गया है आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा. Here you can see this the class interval we are getting. From class interval we are getting midpoints. 0 plus 10 divided by 2, 10 plus 20 divided by 2, 20 plus 30 divided by 2, 30 plus 40 divided by 2. You are getting the answer on midpoints, and the frequency is there. Midpoints we will take on x-axis, and frequency we will take on y-axis. So this is the explanation. Make the class interval along x-axis and and the frequency along the y-axis. We take the imagined classes 0 to 10 at the beginning and 90 to 100 at the end, each with frequency 0. We have tabulated with which is given below. Using the adjacent table, plot the points. A is equal to 5, 0, like first value of x, and the second value of y, 5 and 0, x and y. B is 15 and 4, x and y. C is like 15 is representing x and 4 is representing y. Similarly, C, and D, E, F, G, H, I, J. We draw the line segments AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, to obtain the required frequency polygon. That is this, which is given below or given on the graph. क्लास इंटरवल को मिड पॉइंट्स में चेंज किया, फिर उसको हमने शो किया ग्राफ पे क्लास इंटरवल को और फ्रीक्वेंसी को. और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि 0 से लेके 10 तक जो था वो आपने बिगनिंग में ले लिया है, और फिर 90 से 100 तक ये क्लास में नहीं शामिल था लेकिन हमने इसको लिया है. और इसके बाद क्योंकि हमने एक स्केल मेंटेन करना है जो कि इक्वल स्केल हो और सेम स्केल हो, और इसके अलावा इधर पॉइंट्स इन्होंने शो किए हैं एडजेसेंट टेबल में, और वो एडजेसेंट टेबल जो है उसमें ए के साथ 5, 0 है, बी के साथ 15, 4 है, सी के साथ 25, 6 है. ये एक्चुअल में एक्स और वाई की वैल्यू है, यानी 5 एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह बी के जो पॉइंट्स हैं 15 एंड 4, 15 एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. Now this is the last but not the least type of the frequency graph. This is called Ogave or cumulative frequency graph. By plotting cumulative frequency against the respective class boundaries, we get ogaves. As such, there are two ogaves less than type ogave and obtained by taking less than cumulative frequency on the vertical axis, and more than type ogaves by plotting more than type cumulative frequency on the vertical axis, and thereafter joining the plotted points successfully by line segments. Now you can see the table is given, number of students, and now we are arranging less than and more than graph. Less than cumulative frequency graph is we have to make a 3, then 4, then 5, 7, 9, 8. When less than is there, we will take 0 and then add 0 in 3, next 3, and then 3 plus 4, it gives you 7. 4 plus 5 will be, because for the less than we will take 0, the first one. The first class, in front of the first class interval there will be 0. For more than we will take the highest value. The highest value is 36, and we will go down. It is in the ascending order, and this is in the descending order. ग्राफ
फ्रीक्वेंसी ग्राफ होते हैं, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लेस देन और मोर देन में डिवाइड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब लेस देन की फॉर्म में लिखते हैं, वहाँ पे पहली क्लास इंटरवल के ऑपोजिट हम 0 लिखते हैं, फिर 0 को 3 में ऐड करते हैं, जो 3 जो आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसमें 0 ऐड होता है, फिर इस तरह कॉन्टीन्यूसली ऐड होते होते 36 आ गया, आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस हुआ है। मोर देन में हम ऑपोजिट करते हैं, यानी हम बड़े नंबर से शुरू करते हैं 36 से, और फिर उसमें से वो 33 प्लस 3 इज इक्वल टू 36, 29 प्लस 4 इज इक्वल टू 33, इसी तरह गो डाउन, हम नीचे की तरफ जाते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं मोर देन में। और इसी तरह ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी दो तरह की होती है, एक वर्टिकल एक्सिस में लेस देन और वर्टिकल एक्सिस में मोर देन। Now you can see here the graphic representation of octave and cumulative frequency. Now we have to write the points from less than and more than cumulative frequencies as given below. Points from less than frequency cumulative frequencies are these one, like in front of the class interval 43.50 there is 0, 48.50 there is 3, 53.50 there is 7, 58.50 there is 12, 63.50 there is 19, 68.50 28, 73.50 is 36. Now points from more than cumulative frequency, these are given, and now taking frequency on horizontal axis, weight on vertical axis, and plotting the above point, we get octave as shown in the diagram. और दो ग्राफ बनाए गए हैं और दो पॉइंट्स हैं, एक को डॉटेड लाइन में शो किया, एक को स्ट्रेट लाइन में शो किया हुआ है। पॉइंट्स इसमें गिवन है। 43.50 जो है वो 0 के ऑपोजिट है, आप देख सकते हैं। क्लास इंटरवल साथ दिया हुआ है और साथ वो पॉइंट जो लेस देन में आ रहे थे वो, और मोर देन में वो जो पॉइंट्स आ रहे थे वो पॉइंट्स, और क्लास इंटरवल दिया गया है। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में शो कर दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी हद तक ग्राफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।